मैं स्कूलिंग तक ऑलमोस्ट 6 स्टैंडर्ड तक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही था, जिससे हर बच्चा कैसा रहता, मशीन्स की तरफ इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ चुका था। जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उन सबका एक बेसिक मकसद है कि अपने लोगों की मदद करना। देखिए, विजन उसी को कहते हैं कि जो किसी को नहीं दिख रहा वो आपको दिख रहा, दैट्स द विजन। एक चीज़ डिसाइड कर लेते कि ये गोल अचीव करना है, तो फिर आप जब डिसाइड करते तो आप वो चीज़ करके भी बताना। कुछ दिन पहले ऑक्सीजन की कमी देखते हुए आई मेड एन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। ये एक प्रोजेक्ट करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे रुका नहीं, मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करा। डॉक्टर इंजीनियर्स के सिवाय भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप आईपीएस कर सकते हैं, आईएएस कर सकते हैं। सिर्फ अपने कौम की और अपने लोगों की खिदमत करने का अगर आपके अंदर जज्बा है, दीवानगी है, देन कॉन्टैक्ट मी राइट अवे। वी विल ऑल टुगेदर सॉर्ट इट आउट एंड फाइंड अ बेटर वे। Assalamu alaikum. I am Muhammad Umar Khan, 18 years old. I have completed my intermediate and presently preparing for my entrance exam. मैंने स्कूलिंग स्प्रिंगफील्ड इंटरनेशनल स्कूल से कंप्लीट की थी 8th क्लास तक। 8th क्लास के बाद एमएस क्रिएटिव स्कूल ज्वाइन करा और एमएस क्रिएटिव स्कूल से 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए। उसके बाद भी एमएस जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। When I was in schooling, when I was in 7th grade, in our school there was science exhibition, so I had a chance to take part in a science exhibition. I was just an ordinary student with an extraordinary love for machines. तो मैंने पहले वो साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लिया। उसमें हम लोग पूरे दोस्त मिलके क्लासमेट्स एक सिटी प्रोजेक्ट बनाए। वो सिटी प्रोजेक्ट बेसिकली बिल्डिंग के मॉडल्स और वर्किंग स्ट्रीट लाइट्स, कार्स एंड विंडमिल्स पे बेस्ड था। तो वहाँ से आई हैव स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ साइंस फेयर्स एंड साइंस एग्जीबिशंस, एंड लेटर व्हेन आई वाज इन एमएस आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल साइंस फेयर्स at national level, state level. So I had a great exposure for them. और कुछ दिन पहले ऑक्सीजन की कमी देखते हुए I made an oxygen concentrator. Oxygen concentrator basically it's a machine which provides 95% plus oxygen and which can run for 24/7 hours. And before this I invented touchless elevator operating system, which allows the user to operate the elevator remotely through the mobile app or through the touchless buttons. And one thing you can notice in my projects is whatever I do it for the people, I do it for the community. जितने भी मेरे projects हैं उन सबका एक basic मकसद है कि अपने लोगों की मदद करना. And the greatest pleasure I have had is trying to do something which everybody says could not be done. Do not grow with the view that something cannot be done, so should not be done. We in the years ahead are going to be the future leaders of this country and shaping the destiny of this country. I personally believe that in order to achieve something, firstly you must have a clear vision. देखिए, विजन उसी को कहते हैं कि जो किसी को नहीं दिख रहा वो आपको दिख रहा, that's the vision. Secondly, you must work hard with intelligence. Working hard is not just enough, you also need smart work with hard work. I just work hard and don't look at anything. There is no peripheral for me. Parties are not important and I am thankful for them. Chilling out with friends is important. It's not important, but I love them. The thing which is important is to stay focused on the goals and never fear doing something. If you genuinely believe you have a good idea and you genuinely believe that it's good, then don't let an idiot walk you out of it. There's a popular law called Murphy's Law. It states that the more you fear something, the more it will happen. For me, fear has two meanings. Face everything and rise up, or else forget everything and just run. So it totally depends on you. And the next important thing is to stay disciplined and humble. वो कहते हैं कि तूफ़ान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, तूफ़ान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ. Stay humble, cross all the limits to help someone, then Allah will surely help you to in your difficult times. Finally, the most important thing which I personally believe is self-belief. Why lion is the king of jungle when he's not the biggest? Probably elephant is the most biggest animal.
वाई ही इज़ द किंग व्हेन ही इज़ नॉट द टॉलेस्ट। सिर्फ इसीलिए क्योंकि लायन के पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है, उसका सेल्फ बिलीफ है। Like none can destroy an iron but its own rust can. Likewise, none can destroy a person but its own mindset can. For just example, if I say I aim to be prime minister maybe after 20 years, I am 99% sure that most of you will laugh at me, but on the other hand, I am 100% sure that it's not going to affect my belief system. And the most basic thing in the whole process of achieving your goals is to being grateful for what you have and work for what you want. Always respect the people around you, especially your parents. आज तक मैं कभी मेरे बाबा बैठने से पहले नहीं बैठा और हमेशा उनके उठने के साथ उठ जाता हूँ। और कभी whenever we go for a walk, I always walk behind him with the intention that if we are being attacked, then I will be the one who get injured, not my father. Your father works 24 hours a day just to give you a better life. You have no rights to disappoint that person. Don't limit this to your parents. Also, my paternal uncles Mujib Khan and Mohit Khan are a great source for inspiration for me. Every time I meet them, I try to learn at least something new. I have to say this, they are just incredible. I see a lot of people, a lot of my friends on Instagram posting things like going for a movie or having a coffee on Sunday. When I ask them, they say, at least on Sunday, come on, we have to do this. But if you ask me, I live my everyday adventures, so I never find need to specially go out on Sundays and to have fun. I believe it's a high time that we have to understand that there are more professions than just being a doctor or engineer. It can be IPS, IAS, or maybe a politician. We have to stop limiting ourselves only till doctors and engineers. We have to stand up and speak for our community because no one else is going to do it for us. It's our responsibility to spread the word of Allah in each and every corner of the world. Don't think that we are just still young, we can't do it. Hazrat Ali, take inspiration from them. Hazrat Ali was just 18 years old when he led the whole army. टुडे वी नीड टू स्ट्रेंथन आर कम्युनिटी। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम किसी गैरों के खैरोकार नहीं हैं। हम हज़रत खालिद बिन वलीद के खैरोकार हैं। हम उमर इब्न अल-ख़त्ताब के खैरोकार हैं। खालिद बिन वलीद द कॉन्करर, द मैन हु वाज अनडिफीटेड इन 200 बैटल्स, ही वाज टाइटल्ड द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। वी आर द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आई थिंक इट्स अ टाइम टू रिपीट द हिस्ट्री। वी हैव टू वेक अप। I don't care what your background is, what your qualification is or what your gender is. सिर्फ अपने कौम की और अपने लोगों की खिदमत करने का अगर आपके अंदर जज्बा है, दीवानगी है, then contact me right away. We will all together sort it out and find a better way. Many of my classmates are dropouts from the college due to their own problems. I had a friend who lost his father long back. I can understand how it feels. I too have experienced it and went through it. But now it's time to turn your pain into power. Inshallah, soon I will be starting an organization which will have two divisions. One will be for business and another one will be for community services. All the people who are looking for the job and all the dropouts and people who are suffering from financial problems can join this. I will be sharing in detail about this shortly. आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, क्योंकि जब मैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बना रहा था तो मेरे पास लिमिटेड सोर्सेज थे। पहली प्रॉब्लम थी कि लिमिटेड सोर्सेज है, और दूसरी प्रॉब्लम लॉकडाउन चल रहा था जब, और टाइम बहुत कम था। विद इन 1 मंथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पूरा बिल्ड करना था। तो अगर मैं दिमाग से काम लेता और सोचता कि ये बनाना है विद इन दिस लिमिटेड रिसोर्सेज, दैन वो मुश्किल था बनाना। लेकिन मैं अगर अपने दिल से सोचता और अपने जज्बे से काम लेता तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको बना सका। वो कहते हैं कि मंजिल सिर्फ जुनूनी को मिलती है। मैं स्कूलिंग तक ऑलमोस्ट 6th स्टैंडर्ड तक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही था, जिससे हर बच्चा कैसा रहता। लेकिन 7th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल में एक पहला साइंस एग्जीबिशन हुआ था। वो साइंस एग्जीबिशन में हम लोग पार्ट लिए थे। जैसा मैं आपको बताया, मैंने वहाँ पे एक सिटी मॉडल बिल्ड किया था। उसमें बिल्डिंग्स थे, स्ट्रीट लाइट के मॉडल्स थे, फंक्शनिंग कार्स थे और फंक्शनिंग विंडमिल्स थे। तो यहाँ से जो मशीन्स की तरफ इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ चुका था। ये एक प्रोजेक्ट करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे रुका नहीं, मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करा। उसके बाद में फिर साइंस एग्जीबिशंस तक, एक हद तक साइंस एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करा। उसके बाद जब मैं MS ज्वाइन करा था, वहाँ से हम लोग साइंस फेयर्स में भी पार्टिसिपेट करना शुरू करें। अब तक देखिए, जो मेरा फर्स्ट वैल्यूएबल प्रोजेक्ट था वो था स्मार्ट सोलर पैनल। स्मार्ट सोलर पैनल एक AI प्रोजेक्ट था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड था। वो सोलर पैनल एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो सोलर पैनल को अपने आप उसका एंगल एडजस्ट करे। जैसे सन के मूवमेंट से, अगर सन इधर है तो पैनल ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शन में टर्न हो जाता, और जैसा ऊपर जा रहा सन के डायरेक्शन से मूव होता। तो इससे जो है मैक्सिमम सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो सकता था। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो यहाँ से मेरे को जो हायर प्रोजेक्ट्स की तरफ जो टर्निंग पॉइंट था।
उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बिल्ड करे थे हम। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर का रिप्लेसमेंट है, सिलेंडर को आपको बार बार रिफ़िल कराना पड़ता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेसिकली मशीन है जो आपको 95% प्लस ऑक्सीजन 24/7 प्रोवाइड करता। इसके साथ साथ मैंने टचलेस एलिवेटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाए थे। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है क्योंकि अगर आपको नॉर्मली लिफ्ट को कॉल करना है तो बटन प्रेस करना पड़ता, और जब आप बटन प्रेस करते लिफ्ट का वायरस के ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि वो बटन एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हर कोई आके लिफ्ट को कॉल करने के लिए बटन को टच करता। लेकिन आप ये सिस्टम के थ्रू आप विदाउट टचिंग द बटन लिफ्ट को कॉल कर सकते हैं, या तो हमारे ऐप से या फिर जो टचलेस बटन है। टचलेस बटन बेसिकली सेम बटन है, मगर उसके पास आप फिंगर करीब लेके गए 1 सेंटीमीटर टच होने से पहले लिफ्ट कॉल हो जाती। देखिए, जब आप एक चीज़ डिसाइड कर लेते कि ये गोल अचीव करना है, तो फिर आप जब डिसाइड करते तो आप वो चीज़ करके भी बताना। आप जस्ट स्टे फोकस्ड रहिए उस पर, हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, और उसके साथ साथ कभी उम्मीद मत छोड़िए। आप जो लोग बच्चे अब स्कूलिंग में हैं या कॉलेजेस में हैं, मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि स्कूलिंग तो पढ़ना है, जो नॉर्मल आपका एकेडमिक्स है वो तो आपको पढ़ना है, उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लीजिए। साइंस फेयर्स है, कॉन्टेस्ट है, फिएस्टास है, सब में आप पार्ट करिए तो आपको डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस आता, एक्सपोजर मिलता आपको एक अलग डिफरेंट वर्ल्ड का। सिर्फ एकेडमिक्स के हद तक ही स्टिक मत रहिए, आप और भी एक्सप्लोर करिए। और जितने भी बच्चे अपना इंटरमीडिएट ख़त्म कर चुके हैं, आगे के स्टडीज़ के लिए मूव कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि स्टडीज़ में आपके करियर ऑप्शंस में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मोस्टली कुछ जो लोग डॉक्टर इंजीनियर्स करते हैं वो लोग डिग्री पूरी कर लेते, फिर दूसरे कंट्री को चले जाते, वहाँ पे जाके सर्व करते। तो डॉक्टर इंजीनियर्स के सिवा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। आप आईपीएस कर सकते हैं, आईएएस कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। पॉलिटिशियन भी आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है। ये जो फील्ड्स है ये आपको पब्लिक को सर्व करने में मदद करते हैं। तो आई विल एनकरेज यू टू ऑल्सो गो इन अदर फील्ड्स रादर दैन बीइंग अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। जो मेरे जितने भी अब तक प्रोजेक्ट्स रहा उसमें मोस्ट एप्लीकेबल प्रोजेक्ट जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो है टचलेस एलिवेटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये देखिए, आपको मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन बता दूँ कि कहाँ पे काम में आता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बनाए, थोड़े दिन तक उसका काम था, उसको छोड़ दिए, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। जो टचलेस एलिवेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मोस्ट जो यूज़ है और हेल्पफुल रहेगा ये लाइफ्स को सेव करने में, वो है मेट्रो स्टेशंस पे लिफ्ट्स रहते हैं, एलिवेटर्स का भी ऑप्शन रहता है, एस्केलेटर्स भी रहते हैं, मगर एलिवेटर्स के लिए आपको कॉल करना पड़ता है। जो दो कॉल यहाँ पे नॉर्मल बटन्स है, अगर जो भी मैनेजमेंट है उन लोग आगे आए तो हम लोग एक बेटर सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसके लिए। क्योंकि अगर आप वो बटन्स को कॉपरेट करके उसको टचलेस बटन्स में कन्वर्ट कर सकें, तो वो हॉटस्पॉट जो है, वो हॉटस्पॉट कई हद तक डिजीज़ का ट्रांसमिशन रोक सकता। ये सिर्फ मेट्रो स्टेशन पे नहीं है, मेट्रो स्टेशन पे ये तो गवर्नमेंट सेक्टर है, मेट्रो स्टेशन, प्राइवेट मॉल्स है, एयरपोर्ट्स है, ये हर जगह अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जो मैं काम कर रहा हूँ वो इंशाल्लाह कुछ ही दिन में आपके सामने लाएंगे उसको। वो प्रोजेक्ट है सोलार लाइट। सोलार एक ऐसी चीज़ है, देखिए, सोलार एनर्जी दैट इज़ यू डोंट नीड टू पे, लेट सन पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। कई लोग हैं जो घर में इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लोग एक ऐसी लाइट लाने वाले हैं, उसके अंदर बिल्ट इन बैटरी रहती, वो आपको घर में इंस्टॉल करना है। वो 12 आवर्स का बैकअप रहता, और सोलार पैनल आपका बाहर इंस्टॉल रहता, उसको रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते। नॉर्मल लाइट की तरह ही रहती वो, मगर जब लाइट जाती पावर कट्स के टाइम पे भी सोलार पावर से काम करती वो। ये प्रोडक्ट हम लाने वाले इंशाल्लाह, ये एक एंड प्रोडक्ट रहने वाला है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इन्वर्टर, और जहाँ पे पावर सप्लाई देना मुश्किल है, वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है। And again, it's from renewable resources, solar energy. It's better option to move. Ultimately, I wanna say, win with me or watch me win. Jazakallah. Assalamu alaikum.